Hello and welcome to another episode of Law MCQs of Drishti Judiciary. Let's begin. Which of the following orders is appealable under Section 37 Clause 1 of the Arbitration and Conciliation Act 1996? Grant of costs, setting aside arbitral award, appointment of arbitrators और execution of foreign awards. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 37(1) के तहत निम्नलिखित में से कौन सा आदेश अपील योग्य है? लागत का अनुदान, मध्यस्थता अवार्ड को रद्द करना, मध्यस्थतों की नियुक्ति और विदेशी अवार्ड का निष्पादन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्यस्थता अवार्ड को रद्द करना। Section 37 Clause 1 Subclause C of the Arbitration and Conciliation Act 1996 allows appeals against orders that set aside or refuse to set aside arbitral awards under Section 34 of the Act. It ensures remedies related to award decisions are available. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 37(1) सी अधिनियम की धारा 34 के तहत मध्यस्थता अवार्ड्स को रद्द करने या रद्द करने से इनकार करने वाले आदेशों के खिलाफ अपील की अनुमति देती है। यह सुनिश्चित करता है कि अवार्ड निर्णयों से संबंधित उपचार उपलब्ध हो। नेक्स्ट, which section under BNSS provides conditions for granting bail in non-bailable offences? Section 480, Section 478, Section 436, Section 437। BNSS के अंतर्गत कौन सी धारा गैर जमानती अपराधों में जमानत देने की शर्तों से संबंधित है? धारा 480, धारा 478, धारा 436, धारा 437। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, सेक्शन 480। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 480। Section 480 Clause 1 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 outlines when bail may be granted in non-bailable offences. It includes exceptions for offences punishable with death or life imprisonment. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 480(1) बताती है कि गैर जमानती अपराधों में जमानत कब दी जा सकती है। इसमें मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए अपवाद शामिल है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स द पावर टू हाई कोर्ट्स टू इशू रिट्स? आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 136 और आर्टिकल 143। कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 143। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 226। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 226। Recently, in the Jakharia Salman Manek and Others versus Ministry of Environment, Forest and Climate Change case, the Gujarat High Court dismissed a PIL stating that the factual inquiries required are beyond the scope of Article 226. Article 226 grants High Courts the authority to issue writs for enforcing fundamental and legal rights. हाल ही में जाखरिया सलमान मानेक एवं अन्य बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अपेक्षित तथ्यात्मक जांच अनुच्छेद 226 के दायरे से बाहर है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक और कानूनी अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट, who approves the resolution plan after it is accepted by the committee of creditors? Board of Directors, Adjudicating Authority, National Company Law Appellate Tribunal, Insolvency Resolution Professional। ऋणदाताओं की समिति द्वारा समाधान योजना को स्वीकार किए जाने के बाद उसे कौन मंजूरी देता है? निदेशक मंडल, न्याय निर्णयन प्राधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, दिवालियापन समाधान पेशेवर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, न्याय निर्णयन प्राधिकरण। Recently, in the Odisha Manganese and Minerals Limited versus State of Odisha and others case, the Odisha High Court held that
all liabilities of the corporate debtor prior to approval of resolution plan stand extinguished once the plan is approved under Section 31 of the Insolvency and Bankruptcy Code. As per Section 31 Clause 1 of the Insolvency and Bankruptcy Code, the adjudicating authority is responsible for approving the resolution plan. Once approved, the plan becomes binding on all stakeholders, including employees, creditors and guarantors. हाल ही में उड़ीसा मैंगनीज एंड मिनरल्स लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य एवं अन्य मामले में उड़ीसा उच्च न्यायालय ने माना कि समाधान योजना के अनुमोदन से पहले कॉरपोरेट देनदार की सभी देनदारियां दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 31 के तहत योजना को मंजूरी मिलने के बाद समाप्त हो जाती है। दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 31(1) के अनुसार समाधान योजना को मंजूरी देने के लिए न्याय निर्णायक प्राधिकरण जिम्मेदार है। एक बार स्वीकृत हो जाने पर योजना कर्मचारियों, ऋणदाताओं और गारंटरों सहित सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी हो जाती है। नेक्स्ट, एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, टोटली अनएक्सेप्टेबल। विवाह निषेध समझौता क्या है? वैध, शून्य, शून्यकरणीय, पूरी तरह से अस्वीकार्य। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वॉइड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शून्य। As per the Section 26 of the Indian Contract Act 1872, any agreement that entirely restrains the marriage of a person except a minor is void. Partial restraints on marriage are also void if deemed unreasonable by the court based on the case circumstances. भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 26 के अनुसार कोई भी समझौता जो नाबालिग को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के विवाह को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है वह शून्य है। विवाह पर आंशिक प्रतिबंध भी निरर्थक है यदि मामले की परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय द्वारा उन्हें अनुचित माना जाता है। Now it's time for the practice question. A contracts to pay B a sum of ₹20,000 if B's house is burnt. This is contract of wager, contingent of contract, contract of uncertainty, none of the above. अब बारी है अभ्यास प्रश्न की। A अनुबंध करता है कि यदि B का घर जला दिया जाता है तो वह उसे 20,000 रुपए देगा। यह क्या है? दाव का अनुबंध, आकस्मिक अनुबंध, अनिश्चितता का अनुबंध, इनमें से कोई नहीं। सेंड अस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।